بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین حضرات، آج وہ سبجیکٹس لیں گے جن کا تعلق رولز سے ہے، قوانین کو سیکھنے سے ہے۔ ان میں ایک سبجیکٹ انگلش کا آتا ہے کہ جو ایم سی کیوز جو ہمارے 1 کلاس سے لے کر 8 کلاس تک 48 مارکس کے یہ ایم سی کیوز، ان کا تعلق رولز سے، گرامر سے ہے۔ لیکن دیکھا کیا گیا ہے کہ جو انگلش کا ٹیچر ہے وہ جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے سارا فوکس اس کا اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ لیسن اور اس کے علاوہ جو ایکسرسائز کے اندر جو کچھ میٹیریل ہے اس نے یہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی بس اتنا کچھ ہی کرواتا ہے۔ جبکہ جو پیپر جب بنتا ہے وہ ٹینسز، پیسو ایکٹیو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ پارٹ آف اسپیچ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جبکہ یہ چیزیں بچوں کو کم کروائی جاتی ہیں، ٹیکسٹ بک پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ جو 48 نمبر ہیں اس کو ہم نے گین کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں گرامر پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا، اور جو 8ویں تک گرامر ہے یہ سکھائی پڑھائی جاتی ہے، جو نصاب میں شامل ہوتی ہے۔ اگر یہ بچہ سیکھ لیتا ہے تو آگے بڑی کلاسز تک اس کو انگلش کے حوالے سے کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ اور چونکہ یہاں پہ نچوڑ ایک گرامر کا دیا جاتا ہے 8ویں کلاس تک، لیکن ہمارے اساتذہ جو اکثر دیکھے گئے ہیں وہ اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے کا کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ کمپارٹس آتی ہیں بڑی کلاسز میں بچے کی انگلش کے سبجیکٹ میں، اس لیے آتی ہیں کہ اس کی گرامر ویک ہے۔ کوئی بھی لینگویج ہے، کوئی بھی زبان ہے، اس کی بیس جو ہے وہ گرامر ہے۔ جب تک ہم اس زبان کی، اس لینگویج کے میں گرامر نہیں آئے گی، اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، تو زبان کے اوپر ہمیں مہارت حاصل نہیں ہو سکے گی، ایکسپرٹ نہیں ہو سکیں گے اس لینگویج کے بولنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں۔ تو ہمیں گرامر پہ جو بھی لینگویج ہے اس کا پہلے گرامر کا سیکھنا ضروری ہے۔ عربک لینگویج ہے، زبان ہے، اس کے لیے صرف و نحو کا سیکھنا ضروری ہے۔ جو صرف ہے یہ ساری فعل پہ بحث کرتی ہے کہ فعل کیا ہے، فعل کس طرح مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، ماضی کی، مضارع کی، یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ٹینسز میں کیسے چینج ہوتا ہے، امپیریٹو سینٹینسز میں کیسے چینج ہوتا ہے، یہ مختلف شکلیں تبدیل ہوتی ہیں فعل کی۔ صرف میں اس طرح جو نحو ہے اس میں اسٹرکچر آف سینٹینس کے اوپر بحث کی جاتی ہے کہ جملے کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح دینی ہے۔ تو یہ صرف نحو، اور صرف ام العلوم والنحو ابوہا، فرمایا کہ صرف جو ہے یہ سارے علوم کی ماں ہے، جڑ ہے، اور جو نحو ہے یہ باپ ہے۔ تو یہ عربی زبان بھی گرامر کے بغیر نہیں آتی۔ جو اعراب لگائے جاتے ہیں عربی ٹیکسٹ کے پر، کوئی بھی سینٹینس ہے، جملہ ہے، تو وہ یہ رول گرامر بتاتی ہے کہ یہاں پہ اعراب کون سا آنا ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان کو سیکھے بغیر ہم عربی کو پڑھ نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، اس کا ترجمہ، ٹرانسلیٹ اس کو نہیں کر پائیں گے۔ ایسے ہی دوسری زبانوں کا حال ہے۔ انگلش زبان ہے، اس کا جو رولز ہیں جب تک ہم ان کو سیکھ نہیں پائیں گے تو ہم ٹرانسلیٹ اپنی لینگویج میں نہیں کر پائیں گے۔ تو سب سے بڑی مشکل
इस सिलसिला में यही पेश आती है कि हमें ग्रामर नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से बच्चा जो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश से उर्दू में तो वो रट्टे लगाता है। इस सिलसिला में रट्टे का शिकार है, जबकि उसको ग्रामर पे तो जो देनी चाहिए थी, जो पढ़ाने वाले को सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए था। फिर बच्चे को अगर अल्फाज मानी, अगर जो पैराग्राफ जिसकी ट्रांसलेशन करवानी है, अगर बच्चे को सिर्फ अल्फाज मानी याद करवा दिया जाए और ट्रांसलेशन वो खुद करे, इतनी एबिलिटी काबिलियत उसके अंदर पैदा हो जाए कि उसको अल्फाज के मानी आते उस पैराग्राफ के, उस सेंटेंस के जिसकी वो ट्रांसलेशन करने लगा है, अगर उसको ग्रामर आती होगी वो खुद ही उसकी ट्रांसलेशन रूल के तहत कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो तालीमी प्रोसेस में देखा गया है कि बच्चे उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए भी रट्टे का शिकार हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? वो है ग्रामर का ना सीखना और ना सिखाना। तो ये उर्दू है, पेपर जब ये बनता है नर्सरी से 8th क्लास तक, वो भी सारा ग्रामर से रिलेटेड होता है, 48 मार्क्स जो होते हैं। और हमारे यहाँ इसमें भी वही सूरत हाल होती है कि टेक्स्ट बुक पे ही सारा फोकस होता है टीचर का, ग्रामर है वो नहीं करवाते। तो ग्रामर का सीखना जरूरी है, इसके बगैर हम उस जबान पे जिसको सीखना चाहते हैं कभी महारत हासिल नहीं कर पाते। ये तो 8th क्लास तक बात हुई, जिसमें टेंसेस भी होते हैं एमसीक्यूज के अंदर, पैसिव एक्टिव भी होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी होती है और पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं। अगर यही चीजें 8वीं तक कवर कर ली जाए अच्छी तरह, फिर 9th 10th में यही सारा कुछ होता है। 9th 10th में करेक्ट यूज ऑफ वर्ब का इस्तेमाल आ जाता है, 10th में भी आता है, फर्स्ट ईयर में भी आता है। कंडीशनल सेंटेंसेस के जरिए से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। ये बेस जो है टेंसेस के सीखने की, जो बेस है वो वर्ब है, यानी हमने जो वर्ब फेल की फॉर्म्स हैं वो हमें आनी चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगी हम इंग्लिश को सीख नहीं पाएंगे। ये बेसिक चीज है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमारे यहां क्या होता है, कोई अगर टीचर टेंसेस करवाने लगा है तो वो ये नहीं देखता कि बच्चों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आती है नहीं आती, वो डायरेक्ट टेंसेस को टच करता है, उसको स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा टेंसेस समझ नहीं पाता। तो टेंसेस समझाने से पहले जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, फेल की फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं, पहले वो याद करवाई जाएं। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है, फिफ्थ कौन सी है। ये 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, लेकिन हमारी किताबों में चूंकि 3 लिखी होती हैं। फॉर्म्स कहते हैं हम शक्ल को कहते हैं, सूरत को कहते हैं, यानी फॉर्म्स कितनी शक्लों में बदलता है, जैसे ड्रिंक है, ड्रैंक है, ड्रंक है, ड्रिंकिंग है, ड्रिंक्स है। ये 5 शक्लें हैं, छठी शक्ल फॉर्म्स की नहीं है। 5 शक्लों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। इन्हीं का टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है कि कौन सी फॉर्म हमने किस टेंस में यूज करनी है, और दूसरी उससे कबल जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो कौन सा यूज करना है। ये टेंसेस में हमने 2 चीजें सीखनी होती बस। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो हर जगह एक जैसा ही होगा कि हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस का तो वो लेते हैं, इसके बाद हम फेल की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेंसेस सीखते हुए हमें 2 चीजें सीखनी पहले। एक तो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये अच्छी तरह याद हो, और इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ये चीजें बस डिस्कस टेंसेस में होती हैं। जब टेंसेस को सीख लेंगे, इसके अगला मरहला पैसिव का आता है, एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग का आता है। पहले एक्टिव
वॉइस जो है, टेंसेस जो 12 हम सीखते हैं, उनको पहले अच्छी तरह सीखे समझे। इसके बाद अगला स्टेप हमने लेना है वो पैसिव वॉइस का है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट की तरफ मूव करेंगे कि उनके अंदर क्या चेंजेस हमने करनी है। चेंज ऑफ प्रोनाउन है, चेंज ऑफ टेंसेस है, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स है। 3 मेन हम तब्दीलियां करते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट में। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। कुछ स्पेशल मखसूस अल्फाज होते हैं जिनको हमने चेंज करना होता है। तो हमें जब भी कोई ग्रामर से रिलेटेड चीज सीखनी, पहले उनके रूल्स को सीखे, अच्छी तरह समझे, फिर वो जो जबान है उसके ऊपर आपको महारत हासिल होगी। इन उसको आप ट्रांसलेट कर सकेंगे अगर आपको वर्ड्स मीनिंग आते होंगे। जो पैराग्राफ दिया गया है, अगर आपको वो सारे पैराग्राफ के अल्फाज मानी आते हैं, मीनिंग्स आते हैं, तो अगर आपको ग्रामर आती होगी तो आपको किसी हेल्पिंग बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही जो अपने रूल्स ग्रामर सीखी उसके तहत आप ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। ये इंग्लिश और अरेबिक दोनों इसी नहज पे हैं। इनको हम ग्रामर के बगैर नहीं समझ सकते। तो दोनों जबानों को सीखें। इंग्लिश को इस नीयत से सीखें कि जो इस्लाम का पैगाम है, मैसेज है, वो फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न वर्ल्ड तक भी इस्लाम का पैगाम पहुंचा सके। जो इंग्लिश जबान बोलते हैं, समझते हैं, उनको उस जबान में तबलीग कर सके। यह मकसद होना चाहिए हमारा इस जबान को सीखने का। जबानों का सीखना ये मेन मकसद इनका क्या है? हम इस्लाम का मैसेज जो है, पैगाम जो है, वो हम दूसरी अक़वाम तक पहुंचा सके जो हमारी जबान नहीं जानती। तो ये नियत रखे, इंशाअल्लाह इसमें भी अल्लाह हमें अजर अता करता है, सवाब अता करेगा। ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए इंग्लिश बोलने से, या मुझे बहुत लोग पढ़ा लिखा समझे इंग्लिश बोलने से। यह मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी जुबान को सीखते हुए यह मकसद होना चाहिए कि जो लोग ये जुबान जानते हैं उन तक इस्लाम का पैगाम अच्छी तरह पहुंचाया जा सके, ताकि उसकी भी इस्लाह हो सके और समझाने वाला भी अजर और सवाब का मुस्तहिक करार पाए। अल्लाह की बारगाह से उसको भी अजर सवाब मिले, जन्नत की जो बिशारत अल्लाह ने दी है नेकी फैलाने वालों के लिए, उसका वो मुस्तहिक करार पा सके। तो आज हमने यही सीखा है कि कोई भी ज़बान है उसका ताल्लुक ग्रामर से है। जब तक ग्रामर को नहीं सीखेंगे उस ज़बान के अंदर हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकेंगे, ना बोलने में, ना समझने में, ना लिखने में। तो इसलिए ग्रामर है इस पे ज्यादा फोकस करें। पेपर पैटर्न जो होता है उसको जरूर समझा करें, किस नौइयत का पेपर आ रहा है, क्या क्या चीजें वो डिस्कस कर रहा है, क्या चीजें उसने पेपर में शामिल की हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या शामिल किया है, सब्जेक्टिव में क्या शामिल किया है, उसके लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करें और ग्रामर जो अपनी उसके ऊपर खास तवज्जो दें। उर्दू की ग्रामर है, इंग्लिश की है, अरबिक की है। ये अरबिक की ग्रामर कुरान पाक को समझना, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना, इसके लिए ग्रामर के बगैर हम अरबी मतन का जो तर्जुमा है वो नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और ना ही अरबी इबारत जो है, जो आराब नहीं लगे होते, उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए अरबी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, इनको हम कम से कम हमें जो बेसिक चीजें हैं उनका हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम सबको इस पे अमल की तौफीक दे, अरबी ज़बान की ग्रामर भी हमें खुसूसी तौर पे सीखने की तौफीक दे।